हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22। इस चैप्टर में जो हम कॉलिनिज्म्स, कास्ट एंड रिजर्वेशन के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इसका मतलब यही होता है कि संप्रदाय, जाति और जो हमारा आरक्षण दिया गया है उसके ऊपर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एनआईएस को हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, सभी बच्चों के लिए जो ये चैप्टर है वो कई मानने में इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सभी चीज़ों के विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए, एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here, a communism, caste and reservation here. There is a most important chapter. The most important here point arrive the role of the caste India society. What is the role of the caste Indian society? There is a most important topic arrive here, and there is a third point. The political process of any society is influenced by their nature of society. To understand the nature of society, where we study is the social structure. India's social culture is best understood in the term of caste system, and wherein the caste is a hierarchical is arranged. Over the year, the caste system developed into an elaborate system to maintain is a social economics inequality in the society. Individual born in and the belonging to a lower caste and the outer caste suffering from many disadvantages, and where is a oppressed and exporting by their upper caste. The condition of the outer caste of Dalit was the particularly is a pathics. The practice is the untouchability, epithelialize and their condition. In the typical Varm Vyavastha, there is a four word. There is the most important Varn Vyavastha. There is a word here for the Brahman, their perished, and there is a equivalent class. Kshatriya, warriors, and the ruling class. Vaishya, the producing class, is a peasant and artisan. And Shudra here, those who is performing is the manual and the political job. And the one must note there that is the Varn Vyavastha is provide more the theory than the actuality of the caste. In the relative, there is a not for but thousand of caste and jatis in which there is the caste system is organized. It is a possible the necessity of the classify most of the jati in accordance with there is a bird is discriminations, thought it is easy to be done at the extreme ends of the social spectrum. Then at the middle ranges, in other words, the bird system is related to the jati in that give to the holistic framework in which is any jati will be fit. That is the most important first point. And second here, a caste is a localized a group having traditional association with their occupation. The principle of birth form or exclusives is base of membership in a caste group. Accordingly, in the choice of the occupation is not open, but it is determined on the basis of the birth in a caste. In addition, caste group have rules is a governing is the food and marriage. The group is a defined rules and the behavior for it is a member and the exclusive some degrees of authorities and over them including the right to be expelled those who is a live in the authorities. The caste as a group identity is however got a strengthness in the new context of the modern idea and institution.
This happened because it is because one of the basis of the political mobilization among the many castes and classes before during the freedom struggle and afterwards. The social religious movement of the 19th century had made the lower caste conclude there is the backward condition, and also there is a right that has been to the denied to be them over to the centuries. As a result, many amongst them to the were no longer prepared to the accept their inferiors status as a diversity is the ordinance. In the backdrop of there is the awakening, there is introduction of democratic principle of governance. The emergence of the party as a centralized politics and the attempt of their this rule is mobilize the lower and the outer caste along with the Muslim in it is a support to the threat there is a growing national movement. All the combined to the prepare growth for the politicalization of the caste. By the time India again to independence, the backward class is because of the politicalization had become a force to be reckoned with. There is a claim and demand could not be longer to the ignored. At the same time, the nationalist is a leader, but also is a community to be tasked of the improving their condition. In light to above the constitution marker in joining the point to the new state to take a positive measuring for the bearing of the backward classes at the par with the rest of society. They realize that is without the positively interventions there the state it would be not be possible to remove their historically accommodated backwardness. The policy of the reservation for the backward class needed to be understood in this context. The backward classes refer to three categories of the people: the scheduled caste, scheduled tribes, and the other backward class means OBC. यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है जिसको हम कर रहे हैं उसका जो अगला पॉइंट है भारतीय समाज में जाति की भूमिका। देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम भारतीय समाज में जाति की भूमिका के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत समाज में जाति की क्या भूमिका रहेगी। बात अगर हम करें यहाँ भूमिका की तो ये बात साफ हो जाता है कि किसी भी समाज की राजनीतिक ढांचा उस समाज की प्राकृतिक से प्रभावित होती है। समाज की प्राकृतिक को समझने के लिए हमें सामाजिक जो है संरचना को समझना होगा कि सामाजिक संरचना होती कैसी है। भारतीय समाज संरचना को जाति प्रथा के रूप में जो है अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि हमारे जो है किस तरह के जाति हमारे समाज में प्रेजेंट है। जहाँ जाति के अंतर्गत प्राचीन वर्ण श्रम व्यवस्था सम्मिलित होती है तो कई वर्ष का जो है जाति व्यवस्था का विकास समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता को बनाए रखने के लिए होता ही रहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी छोटी जाति में उत्पन्न होता था तो उसे बड़ी जातियों द्वारा परेशान किया जाता था और उसे अन्य अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ता था। दलितों की हालत बेहतर थी, छुआछूत के व्यवहार से उनकी दशा और भी खराब होती चली गई। जो बहुत बड़ी विडम्बना है भारत के लिए था पहले कि ऊंच नीच की भेदभाव जो थी जो वर्ण व्यवस्था के रिगार्डिंग होती थी, जहाँ पर जो है छोटी जात में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता था तो उसको बड़ी जाति के लोग जो थे सदैव ही परेशान किया करते थे, उनके शोषण किया करते थे और उनको कई तरह की जो है सुख सुविधाओं से वंचित रखते थे। अगर हम यहाँ देखें परंपरागत जो है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण उस समय आते थे। आपको पता है कि ब्राह्मण जिसमें पुजारी और शिक्षित वर्ग ही आते थे जिसको हम जो है मुख से निकला हुआ आवाज़ कहते थे, यानी ब्राह्मण को मुख के रूप में देखा जा सकता है जिसमें पुजारी शिक्षित वर्ग होते थे। छत्री की बात होती थी जो कि योद्धा और शासक वर्ग होता था जिनको हम बाजू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वैश्य को जो है व्यापारी एवं वर्णिक वर्ग होता था जिसको हम पेट से रिप्रेजेंट कर सकते थे, यानी ये व्यापारी करते थे, वर्ण करते थे। और क्षुद्र जो होती थी तुच्छ और प्रदूषित युक्त कार्य करते थे, यानी सभी जातियों को जो है पोषण करना, सभी जातियों के लिए कार्य करना क्षुद्र के अंतर्गत आता है जिसको हम जो है चप्पल जूते से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो इस तरह से जो है उस समय इसका 4 वर्णों में विभाजित किया जाता था, यानी मुख से निकला हुआ कोई भी वचन ब्राह्मण के लिए होता था, ठीक है, जो बाजुओं से संबंधित क्षत्रियों के लिए होता था और पेट से संबंधित वैश्यों के लिए होती थी, और क्षुद्र को जो होता था पैरों से निकला हुआ जूते के समान समझा जाता था। तो इस प्रकार उस समय जो है वर्ण व्यवस्था अपनी चरम सीमा पे थी और समाज में ये विद्यमान भी थी। यहाँ हमें यह समझ लेना चाहिए
कि वर्ण व्यवस्था जातीय वास्तविकता की बजाय ज़्यादा सैद्धांतिक है। यानी ये बात साफ हो गया है कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो है था जातीय वास्तविकता के बजाय ज़्यादा ही सैद्धांतिक थी। वास्तव में 4 ही जाति नहीं बल्कि हजारों जातियाँ एवं उपजातियाँ थीं जिन पर जाति व्यवस्था आधारित होती थी। अधिकांश जातियों का वर्गीकरण वर्ण पर आधारित किया जाता था और हालांकि ऐसा करना सामाजिक संरचना के अंतिम छोर पर असामान्य होता था, न कि मध्य में। दूसरे शब्दों में वर्ण व्यवस्था जाति से संबंधित हुआ करती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है सामाजिक संरचना के अंतिम छोर के रूप में देखा जा सकता था कि ठीक है, जाति एक स्थानीय समूह होता था जो किसी भी व्यवसाय विशेष से जो है पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ होता था। जन्म का सिद्धांत जातिगत समुदाय में सदस्यता का एकमात्र आधार माना जाता था, अर्थात व्यवसाय का जो है चुनाव स्वतंत्र न होकर कि जाति में जन्म लेने के आधार पर निर्धारित होती थी। यानी उस समय व्यवसाय जो होती थी जाति के आधार पर होती थी। हम कोई भी जो जाति में जन्म लेते थे उसी जाति का जो कार्य था अपनाना पड़ता था। लेकिन यह आधुनिक समय में सब बदलाव हो चुका है। इसके अलावा इस जातिगत समुदाय के अपने खान पान एवं विवाह संबंधी नियम होते थे। समूह ही अपने सदस्यों के रहन सहन के नियम बनाते थे, यानी उनके समाज ही रहन सहन के नियम निर्धारित करते थे। जो उनके निर्माण नहीं मानते थे उन्हें जाति बरादरी से निकाल जाने के भी अधिकार समुदाय के पास होता था। यानी आपको रूल रेगुलेशन मानना पड़ता था। अगर मान लीजिए आप थोड़ा पढ़ लिख लिए समझ गए, तो अगर आप जाति से अगर आप किसी प्रकार के अगर आप नियम को उल्लंघन करते हो तो जाति जो होती थी उसको जो है समाज से बहिष्कृत कर दी जाती थी, यानी समाज से उसको जो है निकाल दिया जाता था। आधुनिक विचारधाराओं एवं संस्थाओं की दृष्टि से जातिगत पहचान मजबूत हुआ है और स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व, इसके दौरान और बाद में यह राजनीतिक लम्बाबंदी का एक हथियार बनने के कारण ऐसा संभव हुआ है। 19वीं शताब्दी के आरंभ समाजी धार्मिक आंदोलन ने निम्न जातियों को उनकी खराब हालत के प्रति सचेत भी किया है और वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक भी हुए हैं, जिनसे उन्हें सदियों से वंचित भी रखा गया है। परिणाम स्वरूप उनमें से अनेक अपनी दुर्दशा को भाग्य की देन मानने को तैयार नहीं थे। इस जागरूकता के फलस्वरूप शासन में लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होना स्वाभाविक बात था। कहते दल के केंद्रीय राजनीति का उदय एवं ब्रिटिश शासकों द्वारा मुसलमानों सहित पिछड़े और वंचनीय जातियों को बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन का हर्ष करने के लिए लामबंद करने का प्रयास ने जातियों के राजनीतिकरण का आधार तैयार किया। भारत की स्वतंत्रता के समय राजनीति के कारण ये जो है पिछड़ी जाति का ताकत बन चुकी थी। उनकी मांगे एवं हित अधिक दोनों तक ही टालने नहीं जा सकते थे। उसी समय जो है राष्ट्रवादी नेताओं ने भी उनकी दशा सुधारने का जो है बीड़ा उठाया। उपयोग के संदर्भ में संविधान निर्माताओं ने भी सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उन्हें समाज में दूसरे के जो है समान स्थान भी दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने समझा कि राज्य की सहायता के बिना उनके ऐतिहासिक पिछड़ेपन को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए संविधान में आरक्षण की नीति अपनाई गई और पिछड़े वर्गों के जो अंतर्गत निम्न 3 वर्ग आते हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग जाति यानी ओबीसी। तो इसमें जो है महात्मा गांधी भी ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए हर संभव कोशिश किया और उन्होंने दलित का जो है उत्थान में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं हर धर्म के लोगों को जो है हमारे देश में जीने का अधिकार है। सभी कहते हैं कि धर्म जो है जाति पे आधारित होती है, लेकिन आज के समय में जो है ये जो है बंधन टूट चुकी है। आज जो व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने अच्छे कुशलताओं से, अपने ज्ञान से उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं और समाज में इनकी विशेष स्थान भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, बहुत से ऐसे हैं जो दलित वर्ग से ही संबंध रखते हैं, जो कि इतने बड़े पद को प्राप्त कर चुके हैं। So the next topic is the most important here, caste politics. There is the, according to caste system, the caste in politics, there is the most important. The caste began to play an important role after the independence as the involvement in the political increase. The fact that it is excited as the easily is identifiable social custom of people made it is an easy object of political mobilization by the political party in their quest for the political support and the votes. Where the political party are sought to be exposed to the caste for its own electoral purpose. The caste group, by the making politics their sphere of the active, got a chance to be assert their identity and bearing for the benefit and position in the society.
Thus, the caste and politics interaction has been a two-way of process. There is a most important way here. There is a, in the political and the caste association is a play a crucial role. The caste association, the where a quasi is a volunteer association in the sense that is a membership was open only to be individual of the caste community. These associations were formed to the ensure to economics benefit or educational opening for more clearly political purpose of alternating their fight the hegemony of the upper caste. In the other caste, the involvement is the politics as a considerable necessary for scaling the specific purpose for which they were formed. Thus, once formed on the basis of the caste identity, the caste association went on the acquire non-caste functions. In electropolitics, there is a role of the caste is a politics that has become a powerful, and this can be seen at all level of the political process of the country. All the political party tend to be give a party ticket for the candidate for the contesting election for amongst the numerically or otherwise the dominant caste in every constituency. The major caste group get a representation in the counseling of minister. Be this election, there is a political appointment on even formation of political party. Caste has been the major considerations. The influence of the caste, however, varies depending upon to the level of election and their reason. Its influence is far more at the local and state level political process than at the national level. Caste play the great role in the rulers and then the urban area. In the rural area, at the local level, the smallest and constancy and the fact that there is a greater face by the face interaction account for the strong influence by the caste in politics. Since independent two factor has especially both the issue of caste in Indian politics into a sharp focus. And these are the first the integration of the universal adult franchise and second constitutional provision for the protective discrimination in the favor of the backward classes. The introduction of the universal adult franchise brought as a very large section of the profess and who has been to the interest executed on the account of property is a qualification to the vote into the arena in electoral politics. This made up task of mobilizing vote incredibly difficult for their political party. The doubtings is the task was, however, made easily when the political party relied upon to caste to get their votes. In this purpose, caste involvement in the political depend with the every section in India. In addition to be encouraged arena of the electoral politics, the constitutional provision for their protective discrimination also provided to the is a ground for the caste to play a significant role in politics. One may be noted here that is a protective discrimination was the mean for three categories of people: the scheduled caste, scheduled tribes, and the OBC, collectively called as the backward class. Of these three categories, the SCS and STS were easily is identifiable, and there was a large measure of the consensus on the need and desirability of having to the reservation for them. But the caste of the OBC was different. Since independent, two types of caste politics can be discriminated there. The first type involved the caste group is a remains either to the bearing or encouraged as a OBC by the state governments or this already recognized for getting a higher quota in the reservation, and the decision of the state government to the appointment backward classes and commonly commission for the time to time provide to the occasion for such as the state is a caste politics is a flourish. The second types of the caste politics is involved a mobilization of social and political force for on against reservation of for a OBC based solely in the caste criteria. And the extent of the caste involvement in the political can be appreciated by noting to the simple fact that over 50% of the population is a belong to the category of OBC.
Well, the first type of caste politics is sorted to influence the reservation policy of the state government. The second type of caste politics was the aimed to resist the reservation policy of the central government. The reservation issue thus the provided as a fertility ground for a caste to play an active role in the politics. देखिए यहाँ पर जाति के रिगार्डिंग जो हमारा यहाँ पर टॉपिक आया है, जाति में राजनीतिक में जाति, यानी राजनीतिक में जाति ने बहुत बड़ा गढ़ कर लिया है। और आज जो राजनीति होती है वो जाति पे आधारित होती है। आज जो है बड़े बड़े नेता जो है लोगों को जातियों में बांट रहे होते हैं और उससे जो है अपना मकसद पूरा कर रहे होते हैं। इवन कि आप देखोगे न्यूज़ में भी यही जातियों का ही बंटवारा हो रहा होता है। कोई ये कहते हैं न्यूज़ वाले कि जो है इस क्षेत्र जो है गुज्जर क्षेत्र का है, ये क्षेत्र जो है ओबीसी क्षेत्र का है, ये जो एसटी कास्ट के लोग रहते हैं। तो न्यूज़ वाले भी जो है इनको कई वर्गों में बांट रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए कभी भी उचित और न्याय उचित नहीं हो सकता है। यानी कहते हैं हर जगह जो है जाति की भेदभाव लगी रही है, चाहे वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हों, चाहे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हों, सब के सब जो है हमारे धर्मों को जातियों को बांट रहे होते हैं और इनके वोटों को भी बांट रहे होते हैं। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि इतना वोट परसेंट जो है गुज्जर जाति का है, इतना वोट जो है ओबीसी कैटेगरी का, इतना जो है मुस्लिम जाति का है। अरे भाई, जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो इतना मान सम्मान प्राप्त कर रखे हैं वो जब जातियों को बांट रहे होंगे तो आम इंसान में क्या इसकी दुर्दशा होगी, इससे आपसे अधिक समझदार कोई हो ही नहीं सकता इसके लिए। तो न्यूज़ वालों को भी इतना समझ होना चाहिए कि जातियों में ना बांटे तो ही अच्छा है, क्योंकि जाति हम लोग वहीं से सीखते हैं। कहते स्वतंत्रता के बाद जाति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू किया है। राजनीति में इनकी भूमिका अधिक बढ़ गई है। सच्चाई यह है कि आसानी से पहचान में आने वाले सामाजिक समूह के रूप में इसकी स्थिति में राजनीतिक दलों को इनके वोट और समर्थन प्राप्त करने के लिए जाति को जो है राजनीतिक लंबबंदी का विषय बना दिया है। आपने देखा भी होगा कि जाति के आधार पर भी टिकट मिलती है। जिस क्षेत्र में जितने जाति होंगे उसी व्यक्तियों में से एक को जो है टिकट दी जाती है, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो अपराधी वृत्त का हो। सिर्फ उनको इसलिए वोट मिल जाती है टिकट क्योंकि उस जाति से बिलोंग करते हैं और उस जाति पे उनकी बहुत बड़ी दबदबा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए कि आज जो है राजनीति में वो सारे व्यक्ति सम्मिलित हो जाते हैं जिनको अपराधी वृत्ति का होते हैं और कहते हैं इसमें सरकार किसी तरह के कुछ भी नहीं होता, ना रूल रेगुलेशन इन पे लागू होती है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी विडंबना बन गई है। आज जो है स्वतंत्र और अच्छे विचार वाले लोगों का बहुत राजनीति में कमी हो गई है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में जाति के मुद्दे के दो कारकों से विशेष ध्यान आकर्षित किया है। पहला तो यही है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू होना, यानी भारत में जो है 18 वर्ष की जो वोट देने का अधिकार लागू किया है, इसने बहुत बड़ी जो है अपनी पैठ बना लिया है। कारण क्या है कि अब जो 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो भी अगर वयस्क हो चुके होते हैं और उनको भी वोट देने का अधिकार है। तो आपको पता है कि भारत में जो 18 वर्ष की एज के जो होते हैं बहुत अधिक अमाउंट में व्यक्ति होते हैं। दूसरी बात आती है पिछड़ी जातियों के पक्ष में सुधारात्मक आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, यानी देखोगे तो पिछड़ी जातियों के लिए बहुत से आरक्षण किए हैं। कहते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको जो है दिन रात जो है मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप SC/ST कोटा से बिलोंग करते हो तो आपको जो है निश्चिंत से सोने की ज़रूरत है, आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि आपके लिए जो है पहले ही रिजर्वेशन सीट कर दिया होता है। तो ये पढ़ाई लिखाई में भी भेदभाव आज होने लगा है, तो ये गलत है। आज हमें ये समझना चाहिए कि आज जो है OBC SC या कोई भी कैटेगरी के लोग हैं हमारे समाज में सामान्य उनको अधिकार मिला हुआ है और उनको हर जगह जो है सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है और बहुत से व्यक्ति जो होते हैं मेहनत करके आगे भी आ रहे हैं। तो भारत में जो है जाति व्यवस्था की जो ये बनाई गई व्यवस्था है उसे ख़त्म कर देने में ही भलाई है, क्योंकि आज जो पढ़े लिखे अच्छे बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं, लेकिन रिजर्वेशन के कारण क्या होता है कि जो बच्चे पढ़े लिखे भी अधिक नहीं होते वो रिजर्वेशन के कारण सेलेक्ट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है। आप आधुनिक युग में आ चुके हो, यहाँ पर जो है सभी व्यक्ति मेहनत करते हैं, सभी जो है अच्छा पद प्राप्त करना चाहते हैं। तो मेरे विचार से पद उनको मिलना चाहिए आज के समय में जो उसके लायक हो, ठीक है। जो लायक नहीं होते उनको नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो भारत का जो है कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होता चला जाएगा। ये उन व्यक्तियों के हाथों में चला जाएगा जिनको जो है अच्छे से समझ बूझ नहीं होगी और फिर भी राजनीतिक में या जो है बड़े बड़े अफसर में बन के जो है देश को खोखला करने में
अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि आज के समय में जो है हम आधुनिक युग में रह रहे हैं और यहाँ पर जो है पढ़ाई लिखाई जो है मेहनत का काम है। कुछ ही व्यक्ति जो है इस मेहनत को समझ पाते हैं, सभी व्यक्तियों में इस बात की समझ नहीं होती है। इसलिए जो है पिछड़ी जातियों के पक्ष में सकारात्मक आरक्षण की जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है वो देशव्यापी नहीं है। सार्वभौमिक जो है वयस्क जो है मताधिकार से जनसंख्या के एक बड़े ही वर्ग को चुनावी राजनीति में प्रवेश मिल गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के कारण क्या हुआ है, जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को जो है चुनावी राजनीति में प्रवेश मिला है। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में 18 वर्ष से या 18 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसे अब तक की संपत्ति की जो है योग्यताओं के आधार पर बाहर रखा गया था। इसे राजनीतिक दलों के लिए वोटों की लामबंदी काफ़ी कठिन हो गया है। परंतु यह कठिन काम तब आसान हो जाता है जब राजनीतिक दल वोट प्राप्त करने के लिए जो है जातियों पर निर्भर होने लग जाते हैं। इसे प्रक्रिया में प्रत्येक चुनाव के साथ जातियों के चुनाव में भागीदारी मजबूत होती गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते समय के साथ ये काफ़ी मजबूत होना एक स्वाभाविक बात है। चुनावी राजनीति के जो है विस्तृत क्षेत्र के साथ सुरक्षात्मक भेदभाव के जो है संवैधानिक प्रावधानों में ने जातियों को जो है राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आधार प्रदान किया है। यानी इसका जो है काफ़ी भूमिका जो है इसका आधार बना दिया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऋणात्मक भेदभाव 3 प्रकार के वर्गों के लिए था। एक तो थी अनुसूचित जातियों के लिए, एक थी अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एक था अन्य पिछड़ी जातियों के लिए। इन तीनों वर्गों में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आसानी से पहचानी जा सकती थी और इसके लिए आरक्षण की आवश्यकता और इच्छा पर अधिकांश सर्वसम्मति थी। परंतु अन्य पिछड़ी जातियों का जो है मामला इनसे अलग थी। यानी इन देखोगे तो पिछड़ी जातियों में जो है कई जाति जो है आ जाती है। दूसरे प्रकार की जातीय जो है राजनीति में ऐसे सामाजिक राजनीतिक दल आते हैं जो केवल जातीय आधार पर अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के पक्ष अथवा विरुद्ध लंबित काम करते हैं। राजनीति में जाति भागीदारी का अनुमान केवल इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि कुल जनसंख्या का लगभग 50% अन्य पिछड़ी जातियों के संबंध रखता है। अब देखिए, भारत की कुल जनसंख्या का अगर 50% अन्य पिछड़े जातियों में आती है तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई चीज़ की आरक्षण दिया जाए तो कितना बड़ा जो है जनसंख्या ओबीसी के अंतर्गत आ जाएगा। पहले प्रकार की जातीय राजनीति राज्य सरकार की आरक्षण नीति की प्रभावित करने का प्रयास भी करती है। तो दूसरे प्रकार की जातीय जो है राजनीतिक उद्देश्य को केंद्र सरकार की संरक्षण नीति का विरोध भी करना है। देखिए, कहते हैं जातीय आरक्षण जो है हमारे देश में अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है काफ़ी सभ्य हो चुका है, काफ़ी विकसित हो चुका है और यहाँ पर जो है आज एजुकेशन को महत्व देना चाहिए, ना कि जाति को देना चाहिए। कहते हैं पहले इनके साथ भेदभाव की जाती थी तो ये न्याय उचित था क्योंकि इनको आगे बढ़ाना, लेकिन आज के समय में कोई जाति भेदभाव नहीं रह गई है तो इनको जो है आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए और इससे वो व्यक्ति सब आ सकते हैं राजनीतिक में या अच्छे पोस्ट पे जो उनके योग्यता रखते हों। इस प्रकार आरक्षण के मुद्दे ने जातियों की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने को उपजाऊ भूमि प्रदान की गई है। कहते हैं नीति निर्देश सिद्धांत के अध्ययन में अनुच्छेद 38 और 46 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वो जनसाधारण कल्याण का सामान्य एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण का विशेष ध्यान रखे। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य के लोगों के कल्याण हेतु ऐसी समाज व्यवस्था को जो है प्रभावशाली ढंग से तैयार एवं प्राप्त करनी चाहिए जिसमें जो है राष्ट्रीय जो जीवन के सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में न्याय हो। दूसरी बात ये कहती है कि राज्य को विशेष रूप से न केवल लोगों के बीच अतुल विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा विभिन्न व्यवसायों में जुटे लोगों को जो है समूहों के बीच आय में असमानता को कम करने में प्रतिष्ठा, सुविधाएं तथा अवसरों की जो है असमानताओं को प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि असमानता को कम करना बहुत बड़ी जरूरी हो गया है। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य लोगों के कमजोर वर्ग और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक और आर्थिक हितों के पूरा ध्यान से प्रोत्साहित करेगा तथा उन्हें सभी प्रकार के जो है शोषण तथा अन्याय से बचाएगा। देखिए, अन्याय से बचाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जाति को अगर दूसरे जाति उसको गलत कहता है तो इनके लिए प्रावधान जो है न्यायालय में होनी चाहिए, जिसमें इनकी सुनवाई फास्ट होनी चाहिए। तो ये बात न्याय उचित है, क्योंकि किसी को हम जो है धर्म के रिगार्डिंग छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। कहते हैं जाति कोई भी हो, सभी भारत के नागरिक हैं, लेकिन इसमें आरक्षण प्रदान करना, क्योंकि इससे ये हो जाता है जो बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं
वो उनका जीवन जो होता है तहस नहस हो जाता है। इसलिए आरक्षण के कोटे को जो है तो अभी सरकार पे भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आरक्षण की नीति जो है सकारात्मक भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान निर्माताओं ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित भेदभाव के आवश्यक समझा था, क्योंकि केवल अवसरों की समानताओं से पिछड़े जातियों को लोगों को समाज के अन्य लोगों के बराबर नहीं लाया जा सकता। परिस्थितियों की समानता के बिना अवसर की समानता का परिणाम समानता लाने के बजाय असमानता को बढ़ाना होगा। यह जो है गैर करने योग्य बात है, यानी बहुत ही जरूरी बात इसको है कि सकारात्मक भेदभाव जो है असमानता को अधिकार का बाद न होकर उसका एक विभिन्न अंग सा बन गया है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर थी, जिसके 46 के बारे में और 38 के अनुच्छेद के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है हम अगले पार्ट में करेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम जो है आरक्षण के विषय में ही चर्चा करेंगे, यानी रिजर्वेशन के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि रिजर्वेशन होती क्या है और इसका क्या महत्व है। तो अगला वीडियो देखना मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना। इसमें से 2 बातें आपको नहीं भूलना है। पहला ये कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर को सहायता करना है। तो इसलिए क्या करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर जो है इस वीडियो का लिंक को जो है लगाना है। और दूसरी बात ये, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखने में भलाई है, क्योंकि अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है, समझ भी आ रहा है, तो दूसरी बार अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको इसके रिगार्डिंग तिरपान स्टडी सेंटर का कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा। टॉपिक पहले वो आएगा जो पहले ही यूट्यूब पे उपलब्ध है। ठीक है, या अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर को अगर आप जो रिसर्च करोगे तो आपको जो है वहाँ पर तिरपान की जगह तिरपस कर देगा, तो इसमें भी आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है इसका तिरपान स्टडी सेंटर का जो है होम पेज आपको प्राप्त हो जाएगा। और होम पेज पे आपको पता है कि वीडियो का ऑप्शन रहता ही रहता है, तो वहाँ से आपको वो सारे वीडियो लाइन वाइज मिल जाएंगे जो तिरपान स्टडी सेंटर ने डाले हैं। इसमें आपको ढूंढने में बहुत मुश्किल नहीं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तिरपान सेंटर जो है एक सब्जेक्ट को उठाता है तो उसके सारे सिलेबस को क्लियर करने के बाद ही दूसरे सिलेबस पे जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है।